हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस, समवन कैन प्लीज कंफर्म? ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। ओके, ग्रेट। I have been speaking with a lot of you earlier, so this is kind of I think our second or third interaction. Yes, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ शायद पहला इंटरेक्शन होगा. So first of all, many congratulations to all of you, and also wishing you a very happy new year. Right, this new year has really started with a big bang. Right, you become chartered accountant, and now you are heading towards your campus and career. So great to interact with such a high energetic crowd, right? This is definitely quite an early start. We are starting on 1st of Jan, but definitely we will make it slow. I mean, we will not rush too fast, but certainly it is required. This is, the time has come when by the end of this particular month, you will start facing the campus stuff, right? Not interviews, लेकिन अब आपके रिटर्न टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे. राइट, सो आज का जो सेशन है वो बहुत बेसिक सेशन रहेगा. आई विल बी जनरली स्पीकिंग विथ यू, जनरली टॉकिंग अबाउट द कैंपस इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्या आपको प्रिपेयर करना है, इस बैच से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है, आपके जो क्वेश्चंस हैं कैंपस से रिलेटेड. सो ऐसे हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे, ठीक है? इट्स विल नॉट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट डिस्कशन, but of course I will be asking you questions related to campus. You know that every year companies conduct technical interviews. आप लोग सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो, so I'm sure that you will be able to answer the toughest of the questions that are asked in interviews. So आज का जो मेन पर्पस है आज के सेशन का, वो सेशन का पर्पस ये है कि you should be able to understand that what kind of preparations that you need to do, and are you ready for the interview rounds, right? Group discussion rounds and assessment test. That is basically the broad perspective for today's session, right? So कितने लोग हैं जिनके साथ this is the first interaction? If you can write it in the chat box, it is first interaction, or you can write one, right? बाकी जिन लोगों के साथ already interaction हो चुका है, right? That's not a problem. किनके साथ है this is the first time they are attending? All right, first interaction, great, great. Okay. बाकी स्टूडेंट्स से अर्लियर इंटरेक्शन हो चुका है, ठीक है? ऑल राइट, सो अब हम लोग आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं. ऑफ कोर्स द क्रैकर्स, these crackers are for you, right? Congratulations once again. And now again we have to take off for the next destination, right? So this is the first session for Udan batch, right? Why have you given the name as Udan? Definitely, it's a runway to reach the skies of your dream career, right? That is the runway that we try to provide to you. Myself, Gunjan Shrimal, and a lead trainer at CampRep. Next 21 days का जो interaction है, especially 15 days का जो interaction है, उसमें से almost 12 to 13 days we will be interacting, right? So I have worked with these corporates earlier, starting with Idea, moving to Tikona, worked abroad for 2 years, did my industrial training with Bank of America, and worked as a CFO for Apollo Group of Hospitals. So I have been into corporate for almost 10, 12 years, closely seen the industry, and in these years realized that career definitely has is very important, and the first few years are really very very important, right? So that's why, like, putting a focus on the first job is very important and very I mean, it has a long term repercussions. So we'll be talking about all that, what all things that we will be covering in this particular sessions, right? It's all about what after CA finals. So there are a lot of questions, right? There is a series of questions. If I'll start speaking about that, right? So it's an unending questions, right? अभी केवल
कैंपस के फॉर्म से रिलेटेड ही अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो देर आर ऑलमोस्ट 10-15 क्वेश्चंस, राइट? सो ऐसे करियर से रिलेटेड जब बातें स्टार्ट करेंगे तो देर विल अगेन अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। प्रिपरेशन से रिलेटेड बातें करेंगे तो देर इज अगेन लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो everything is will be getting covered or whatever you can think of, right? आप जो भी सोच सकते हो करियर से रिलेटेड, कैंपस से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, राइट? जो कुछ भी पॉइंट्स हैं, राइट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वन particular sessions, right? So that's why, like, what we have done is we have divided the entire course into three parts, right? The first one is career guidance, second one is understanding the opportunities that are there in the industry, and third one of course is campus preparations. तीन पार्ट में अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, राइट, वो तीन ही है बेसिकली। एक है करियर रिलेटेड क्वेरीज, दूसरी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज क्या चल रही है, और तीसरी कैंपस प्रिपरेशंस, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट? सो शॉर्ट में आज इन सबके बारे में बातें करेंगे, राइट? द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स the career related queries, right? Lot of questions are there, like careers related. There are many things, ठीक है? तो हर एक को बेस्ट प्रोफाइल चाहिए, राइट? तो करियर गाइडेंस से रिलेटेड वी हैव टॉक्ड ऑन रिगार्डिंग आईसीआई कैंपस, राइट? आप में से कितने लोगों ने आईसीआई कैंपस का सेशन अटेंड करा था आपने? ओके। और जिन्होंने अटेंड नहीं करा, राइट, दिस इज माय सिंसियर सजेशन, प्लीज वॉच दैट आईसीआई कैंपस का जो वीडियो है, दैट इज ऑलरेडी शेयर्ड ऑन यूट्यूब, राइट? प्लीज डू वॉच इट। बहुत सारी उसमें बातें थी, सो डेफिनेटली डू वॉच दैट। इट्स अबाउट वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू आईसीआई कैंपस, राइट? तो स्पेशली डेट्स क्लियर हो जाएंगे आपको। 10th जैन तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, 15 to 17 तक कंपनी शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको, 18 to 20 आपको कॉन्सेंट देनी है, फिर 21st to 23rd सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग चलेगी, और 24th to 26th आपको सेकंड राउंड की ऑनलाइन कंसेंट देनी है, राइट? तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमने उसमें डिस्कस किया था। और आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड रहता है, सो डेफिनेटली यू कैन सर्टनली आस्क अबाउट इट। ऑल्दो हम लोगों का 4th को एक सेशन होगा, एंड दैट विल बी अ गाइडेड सेशन, राइट? पर्सनलाइज्ड गाइडेंस वाला सेशन रहेगा। देखो, एक बहुत क्लियर बात है जो मेरे ख्याल से किसी को भी उसमें कंफ्यूजन नहीं है, और वो बात है कि शॉर्टलिस्टिंग सबकी एक जैसी नहीं आती है, राइट? ये तो सुना होगा आप लोगों ने कि शॉर्टलिस्टिंग सबकी अलग अलग आती है। तो उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, और वो क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग 4th को डिस्कस करेंगे। और फॉर्म फिलिंग के लिए जल्दी मत करो अभी आप। मैं देखता हूँ कि काफी सारे ग्रुप्स में लोग एकदम मेंबरशिप के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए एकदम रश कर रहे हैं। तो दैट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट, ठीक है? 2-3 दिन रुक जाओ, लेट दी साइट गेट सेटल्ड, राइट? अभी इंस्टीट्यूट को भी थोड़ा सांस लेने का मौका दो, थोड़ी साइट ठीक हो जाए, बेसिक जितने भी इश्यूज हैं वो इश्यूज उसके अंदर रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? और तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको ये करना है कि आपके बराबर जितने अटेम्प्ट्स थे, फॉर एग्जांपल आपका 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, सो 3rd अटेम्प्ट में जिनके पहले क्लियर हुए थे, राइट, दैट यू नीड टू चेक, ठीक है? तो ये एक बेसिक सा डिस्कशन आप करो, ओके? एंड आई एम श्योर दैट यू विल गेट लॉट ऑफ इंसाइट्स अबाउट दैट, ठीक है? तो ये एक बेसिक डिस्कशन करके रखो आप। 4th को मैं आपको हर पॉइंट पे काफी डिटेल में बताऊंगा। इनफैक्ट छोटी से छोटी बात भी जो है कि लाइक अगर हमको एड्रेस फिल करना है, ठीक है, तो एड्रेस फिल करने के लिए परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस, वो क्या फिल करना है, उस किस में फायदा होगा आपको, ठीक है? सो ये जो छोटे छोटे से डिस्कशन है, अटेम्प्ट्स कैसे काउंट करना है, ऑब्वियसली जो बड़ा डिस्कशन है कि सेंटर क्या सिलेक्ट करना है, वो तो एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिसीजन है, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी ये इस वीडियो से एक आपको काफी ब्रॉड आइडिया लग जाएगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्लाइड। अभी जो आप एक सेल्फ डिसीजन अगर लेने की सोच रहे हो, थोड़ा बहुत आप सेल्फ डिसीजन तक पहुंचो, फाइनल डिसीजन मत लो।
एक जिसको बोलते हैं प्रोविजनल डिसीजन, कौन सा सेंटर लेना है, ठीक है, उसका एक प्रोविजनल डिसीजन लेके रखो। फाइनल डिसीजन तो ऑफ कोर्स आई विल डेफिनेटली टेल यू। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ कंपनीज, दिस इज द काउंट ऑफ कंपनीज। नवंबर मई 22 से मई 24 तक की इतनी कंपनीज हैं, राइट। सेंटर सिलेक्शन का लेक्चर हम लोग 4 को लेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग फॉर्म देखो, उसको बहुत ज्यादा मतलब जो बेसिक स्टफ है उससे रिलेटेड वो भले फिल करके रख लो, बट प्रॉपर जो उसका डिस्कशन है हम लोग 4 को करेंगे, एंड थोड़ा 1 to 1 डिस्कशन करेंगे उसके अंदर, ठीक है। दिस वन विल टेल यू कि लाइक सबसे ज्यादा कंपनीज मुंबई में आ रही है, सेकंड नंबर ऑफ कंपनीज आ रही है दिल्ली में, ठीक है। लेकिन इसका मतलब अगेन ये नहीं कि आपको मुंबई या दिल्ली में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव अ 1 to 1 इंटरेक्शन ऑन दैट, राइट। सो कुछ बातें हमने करी थी आईसीआई कैंपस से रिलेटेड, उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट इन द सेकंड सेशन रिलेटेड टू करियर गाइडेंस, ठीक है। वो एक ऑनगोइंग डिस्कशन है, लेकिन उसके अलावा उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत सारे उसके अंदर क्वेश्चंस कवर करे थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, राइट। इफ यू हैव अ हायर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, राइट, व्हाट शुड यू डू। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हों के अटेम्प्ट ज्यादा हो गए, और अटेम्प्ट ज्यादा होने के कारण आर्टिकलशिप को भी एक टाइम हो गया है, ठीक है। और ऑब्वियसली शॉर्टलिस्टिंग इम्पैक्ट होती है उसके कारण, ठीक है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन दी यूट्यूब सेशन, ठीक है। आगे इसको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टिकलशिप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, वर्किंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, कौन सी कंपनी में आपको करियर बनाना है, राइट, दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस। कौन सा सेंटर लेना है आईसीआई कैंपस में, और कौन सी प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जनरली ये क्वेश्चंस रहते हैं कि लाइक कौन सी कंपनीज हायर करेंगी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कैसे जाना है, स्टार्टिंग पैकेजेस क्या हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कैंपस में अप्लाई करना है, ऑफ कैंपस अप्लाई करना है, अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड इंडिया क्या है, बिग फोर में क्या करियर है, अपॉर्चुनिटीज फॉरेन बैंक्स के साथ क्या है। तो ये तो मैंने एक आपको बस छोटा सा एक सैंपल दिखाया है, देर आर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस धीरे धीरे करके ऑब्वियसली डिस्कस होंगे, लेकिन दिस इज व्हाट वी विल बी कवरिंग इन अवर उड़ान बैच, राइट। सो दिस बैच इज डेफिनेटली नॉट ओनली अबाउट कैंपस प्रिपरेशंस, बट अबाउट करियर गाइडेंस एज वेल। सो जहां भी आपको लगता है कि आई नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस, certainly we will be talking about that. Now the third part, जिसके लिए आज हम लोग खास तौर पे आज का जो मेन एजेंडा जिसको बोल सकते हैं, राइट, दैट इज द कैंपस प्रिपरेशंस, ठीक है। कैंपस प्रिपरेशंस के लिए हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, और अ, एक कॉन्फिडेंस आपको भी चेक करना है आपका, कि लाइक हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट द इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। सो मैक्सिमम टाइम आई विल बी स्पेंडिंग ऑन द एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड, ठीक है। और जैसा कि लाइक हर बार हम लोग करते हैं कि जो राइट आंसर्स देते हैं, राइट, दे गेट द प्राइजेस। सो आज दो फायदे हैं आपको। पहला, यू विल अंडरस्टैंड कि प्रिपेयर क्या करना है, और दूसरा ऑब्वियसली प्राइजेस, प्राइजेस आप लोग को जीत के जाना है, राइट। सो कैंपस से रिलेटेड सवाल बहुत सारे हैं, और उसको अभी हम लोग लेते हैं कि करके आप लोग इस बैच का अगर पूरा फायदा उठाना चाहते हो, ठीक है, और ऑब्वियसली उठाना ही चाहोगे, पूरा फायदा ही इसी के लिए आप लोग अटेंड कर रहे हो। सो एक कॉपी मेंटेन करिए, ठीक है, मेंटेन अ कॉपी, फुल फ्लेज कॉपी, ठीक है। और उसी को बेस बनाओ, हर पॉइंट उसी कॉपी में लिखो। लाइक कल हम लोग जैसे बात करेंगे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, राइट, एक सिंपल सा पॉइंट है। सो इंट्रोडक्शन भी उसी कॉपी में लिखिए, आर्टिकलशिप के जो क्वेश्चंस हैं वो भी उसी कॉपी में लिखिए, इंडेक्स के क्वेश्चंस भी उसी कॉपी में लिखिए, मतलब मेंटेन वन सिंगल कॉपी। जैसे आप बाकी किसी सब्जेक्ट की मेंटेन करते हो, कैंपस को भी एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसको उसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनाए, अच्छे से बनाए, उसमें एचआर क्वेश्चंस भी लिखें, तो एवरीथिंग इज मस्ट बी देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट,
यू विल गेट रिकॉर्डिंग्स, राइट? आपको रिकॉर्डिंग्स ऑब्वियसली सभी मिलेगी, लेकिन रिकॉर्डिंग्स के केवल रिकॉर्डिंग्स के उसके लिए नहीं रहना है। आप कोशिश करो कि जितनी ज्यादा लाइव अटेंड कर सको और जितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर सको, ठीक है? स्पीक एज मच एज यू कैन, ठीक है? अभी तो मैंने आप लोगों को बोला हो, कुछ भी बोला नहीं है कि लाइक वीडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वीडियोस भी ऑन करो और ऑडियो ऑन करो और पार्टिसिपेट करो, ठीक है? what you speak, what you think and what you speak, there is a very big difference in that. What are the 5 steps of India's 115? ठीक है, अभी ये सवाल मैं आपको पूछता हूँ, व्हाट आर द 5 स्टेप्स, ठीक है? सो आप लोग सोचोगे, टाइम लोगे, और अगर मैं आपको बोलूंगा लिख लो उसको, तो लिख दोगे आप उसको, ठीक है? यू मे टेक मे बी अ मिनट 2 मिनट टू थिंक एंड यू कैन राइट। लेकिन इंटरव्यूअर विल नॉट वेट फॉर दैट 5 मिनट्स। वो तो बोलेंगे अभी बताओ आप इंडेस 115 की 5 स्टेप्स। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सो कहने की बात ये है कि क्लास का जो पर्पस है, वो पर्पस तभी सर्व होगा जब आप बोलते जाओगे यहाँ पे। तो सारे ही क्वेश्चंस जो लेंगे हम लोग, खासतौर पे इंडेक्स के करीब करीब 75 क्वेश्चंस लेंगे। तो ऑल दो 75 क्वेश्चंस आई विल बी आस्किंग यू। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लो। इट इज अदर वे अराउंड, आई विल बी आस्किंग यू, देन आई विल बी गिविंग यू द राइट आंसर, राइट? सो इट इज बेसिकली not concept to questions, it is questions to concept kind of stuff. Are you getting my point? Like that, ठीक है? सो स्पीक अप एज मच एज, जहां पे भी आपको बोलना है वहां पर आपको पार्टिसिपेट करें। वर्क अपॉन द फीडबैक, राइट? आई विल कीप दिस बैच मिनिमम साइज बैच, राइट? 45 स्टूडेंट्स मैक्सिमम इस बैच में रहेंगे। हर बैच में हम लोग लिमिट कर देते हैं। सो मैक्सिमम 45 स्टूडेंट्स, राइट, दैट विल बी देयर। रीजन उसका ये है कि अदरवाइज इंडिविजुअल अटेंशन विल गेट मिस्ड आउट, राइट? सो जो मैं इंडिविजुअल अटेंशन और 1 to 1 गाइडेंस देने का हम लोग प्लान करते हैं, वो मिस हो जाता है। इसलिए वी विल नॉट एक्सीड इट टू मच, राइट? सो फीडबैक्स, यू विल गेट रेगुलर फीडबैक्स फ्रॉम माय साइड, राइट? इट्स नॉट लाइक आई एम वेटिंग फॉर मॉक इंटरव्यू, कि मॉक इंटरव्यू जब होगा तब मैं आपको फीडबैक दूंगा। मैं आपको इमीडिएट फीडबैक दूंगा। आज मैं आपसे पूछूंगा कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है? तो जो भी इंट्रोड्यूस करेगा, मैं आपको उसी टाइम फीडबैक बता दूंगा कि आपका इंट्रोडक्शन कितना है, मतलब आउट ऑफ ऑन अ स्केल ऑफ 10 इट इज 4 5 6 7, ठीक है? तो इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो फीडबैक पे आपको इमीडिएट काम करना है। आई एम फुल्ली एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? यू कैन डायरेक्टली कॉल, यू कैन मैसेज, राइट? सो बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं ऐसे, जैसे सपोज कल ही आपको कॉल आ गया कि लाइक डेलोइट से कॉल आया, अब क्या करना है, ठीक है? सो डू ड्रॉप मी अ मैसेज, डू कॉल मी, राइट? आई कैन इमीडिएटली टेल यू कि इस सिचुएशन में ये करना है। सो ऐसा नहीं है कि लाइक आई एम नॉट एक्सेसिबल, आई एम फुल्ली एक्सेसिबल, एंड दैट्स व्हाई लाइक दैट इज व्हाट 1 to 1 वी मीन टू से। बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे यहाँ पे, और बहुत सारा है मतलब करने को। आप खुद ही समझते हो कि पूरा जितना आपका फाइनल का सिलेबस है, वो एक तरह से हमको 15 दिन में कवर करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंडेक्स कवर करना है, ऑडिट कवर करना है, फाइनेंस कवर करना है, थोड़ा बहुत टैक्स कवर करना है, फिर नई नई चीजें कवर करनी है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के लिए जनरल नॉलेज कवर करना है, फिर मॉक इंटरव्यू करना। सो इट्स अ बेसिकली लेंदी एक्सरसाइज। सो डू इट इमीडिएटली, राइट? आज का असाइनमेंट आज ही खत्म कर दो, डू नॉट टेक इट फॉर टू लॉन्ग, ठीक है? उस बीच हमको कैंपस का फॉर्म भी डिस्कस करना है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो उसको किसी भी चीज को ड्रैग मत करिए, डू द एक्टिविटीज ऑन अ वेरी सेम डे। टारगेट, अल्टीमेटली ये सब चीजें कर किस लिए रहे हैं? ऑब्वियसली पैसा और जॉब, राइट? ये है आपका टारगेट। तो हमारे हिसाब से टारगेट ये है कि एटलीस्ट 2 to 3 ऑफर्स, एक ऑफर आपको कैंपस के पहले आ जाए और एक कैंपस में और एक कैंपस के बाद, राइट? सो दिस इज ब्रॉडली अवर टारगेट, 2 to 3 offers so that you can select, right? Rather than company selecting you, you are making the final choice, ठीक है? And this class is not only till you get placed, right? This class is till you get settled in your first job, right? This is very important. We have another program called as Camp Prep Career Ladder, right? तो उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं, फर्स्ट 6 months आर फ्री फॉर यू, राइट? और वो इसलिए फ्री है क्योंकि
पहले 6 महीने आप एक दूसरे जोन में चले जाते हो। ठीक है, जो दुनिया है आपकी पूरी तरह 360 डिग्री बदल जाती है। तो इसीलिए ऐसा एक स्टेटिस्टिक्स आया था कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो 50% फ्रेशर्स पहले साल में जॉब स्विच कर लेते, 50% फ्रेशर्स स्विच देयर जॉब इन द वेरी फर्स्ट ईयर, right? So it's very important to get you settled also, right? So our support is not only till your placement, it is till you get settled, properly settled in your first job, right? So that is the target. The classes, although you must have seen the brochure and everything, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक आपको ब्रीफ आउट कर देता हूँ दैट रेज्यूमे ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के 1-to-1 रेज्यूमे आई हैव रिव्यूड ऑलरेडी, बट सर्टेनली देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके रिव्यू बाकी हैं। आई विल बी डूइंग इट पर्सनली ऑन अ 1-to-1 बेसिस। जो भी उसमें शॉर्टकमिंग्स है विल बी टेलिंग यू हाउ यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड point is very important, that is articleship based interview questions. 100% the interviews are going to be asked on articleship, right? So, for example, if I'll ask you, tell me three contribution that you have made to your firm or to your client, ठीक है? क्या ऐसे तीन कंट्रीब्यूशन थे आपके जो आपने आर्टिकलशिप में अपने क्लाइंट को दिए या फिर अपनी फर्म को दिए? ठीक है, नाउ देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स दैट कम्स, राइट? 3 साल की आर्टिकलशिप में से वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना, ठीक है, सडनली बिकम्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन, फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट? सो देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड क्रॉस क्वेश्चनिंग ऑन योर आर्टिकलशिप। So that's why there will be a specific session on that. Index, I already told you, right? आप चाहो तो note भी कर लो. Which are the important index? So index 115, the most important index, right? वैसे मैं जनरली पूछता हूँ कि आप लोगों का फेवरेट इंडेक्स कौन सा है। जब भी इंडेक्स का सवाल आता है तो कोई भी नहीं लिखता है कि इंडेक्स 115 उनका फेवरेट स्टैंडर्ड है, लेकिन इंटरव्यूअर का ये फेवरेट स्टैंडर्ड है। ठीक है, और हमको हमारी चॉइस के ऊपर इंटरव्यूअर की चॉइस रखनी है। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि 115 बिल्कुल क्लियर हो आपको। ठीक है, सो इंडेक्स 115, 116, 16, 2, 12 एंड 109, राइट? ये खास तौर पे आपको फर्स्ट फेज में कंप्लीट करना है। फर्स्ट फेज क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। ठीक है, इससे रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन, अराउंड 50 क्वेश्चन वी विल बी टेकिंग, and I believe 80% of the real interview questions will be coming from this, right? Second is audit questions, right? Audit में भी यही होता है। Audit, although audit is a very peculiar subject, I would say. It's a subject which is very theoretical. जब आप आंसर्स लिखते हो उसके तो बहुत theoretical होता है, और जब प्रैक्टिकल अप्लाई करने की बारी आती है तो उसके आंसर्स पूरी तरह बदल जाते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको क्लियर होंगे। तो आज हम लोग इंडेस ऑडिट के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। HR क्वेश्चंस ऑब्वियसली लुक्स इजी, बट दीज आर अगेन स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इसके भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे। कॉर्पोरेट फाइनेंस, FP&A, ये अगेन एक अपने आप में बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू असेस वेदर यू आर एबल टू आंसर इट और नॉट। ऑलमोस्ट आई थिंक विल स्पेंड ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चंस, almost half an hour on that. My only request, when these questions comes in front of you, do try to attempt. Do not think कि ठीक है गलत हो रहा है मेरा, सही हो रहा है, ये सब बात की बात है। ठीक है, पहले तो आप कोशिश करो उसको आंसर करने की, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Group discussions, right? That is something which is very different round altogether, because normally we do not do group discussions. ठीक है, and that too on a completely different topic. आपको बोला जाता है कि let's talk about India in 2047। ठीक है, अब क्या बोलना है उसके बारे में बहुत सारा दिमाग में आता है, लेकिन कॉन्क्रीट क्या बोलना है, ठीक है, वो पता नहीं चलता है। तो इस तरह से GD के लिए आपको रेडीनेस रखनी है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दैट विल बी टेकन बाय एक्सपर्ट फैकल्टी, राइट? उसमें एक सेशन होगा आपका डायरेक्ट टैक्स पे, एक इनडायरेक्ट टैक्स पे, और जिनको अगर उससे रिलेटेड कुछ कॉल्स आते हैं तो उनके एक्स्ट्रा सेशंस रहेंगे। ठीक है,
So it's a comprehensive batch, right? You do not have to do anything apart from this batch, right? ऐसा नहीं है कि लाइक इंडेक्स के लिए ये करना है, टैक्स के लिए ये करना है, ऑडिट के लिए ये करना है, एवरीथिंग इज देयर, राइट? इट्स अ कंप्लीट फुल फ्लेज बैच, राइट? एंड इट्स अ वन पॉइंट, एंड आई एम योर वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है? एंड ऑब्वियसली इंटरव्यू ग्रूमिंग टेक्निक्स, राइट? कैसे अपने आप को ग्रूम करना है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज फिजिकल कैंपस में कुछ बातें होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं कि लाइक किस तरह से हम, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, फोल्डर्स में क्या क्या कैरी करना है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। Apart from this, it will be your mock interviews, mock group discussions, company specific preparations, career planning, right? That's an ongoing activity. And the most important thing, that is the campus form, right? देखो, if you are attending this session, right, आप सब लोगों से मेरी ये सिंसियर रिक्वेस्ट है कि बिना 1-to-1 सेंटर डिस्कशन के सेंटर मत फिल करिएगा। मैं हर साल सोचता हूँ, हर साल देखता हूँ कि यार क्या हो रहा है, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन करते हैं क्लास, क्योंकि देखो अभी तो जश्न का टाइम चल रहा है, अभी रिजल्ट आया, फिर अभी न्यू ईयर आया, तो अभी तो जश्न का टाइम है और होना भी चाहिए, ऑब्वियसली बहुत बड़ी एग्जाम क्रैक करी आपने। लेकिन कई लोग बहुत लंबे टाइम तक पार्टियां करते रहते हैं, ठीक है? तो पिछली बार एक स्टूडेंट आए थे, उनकी तो कैंपस की फॉर्म की डेट ही निकल गई थी, ठीक है? तो इतना भी लेट नहीं होना है। और कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि सेंटर वाला जो डिस्कशन है वो नहीं कर पाते, खुद से फिल कर देते हैं। और जब 15 तारीख आती है, 15 जनवरी जब आएगी, और जब देखोगे आपकी लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग आ रही है, आपको शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आ रही, वो सबसे ज्यादा खराब मोमेंट हो जाता है। तो जितना भी मजा आया है ये अभी रिजल्ट आने के बाद, वो सारा मजा डाउन होने लग जाता है, क्योंकि हमको शॉर्ट लिस्टिंग चाहिए अल्टीमेटली, राइट? सो दैट इज व्हाट, आप पूरा फॉर्म फिल करके रखो, लेकिन सेंटर सिलेक्शन डेफिनेटली डिस्कस करके ही करिए, राइट? सो दिस इज अबाउट व्हाट विल बी कवरिंग अप इन द क्लासेस। अब देखो क्लास में कई बार ये होता है कि वी स्टार्ट एंड विद इन अ वीक यू विल गेट अ कॉल, राइट? तो फिर आप बोलोगे कि सर फिर हमको 15 डेज तक तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमको कोई इंटरव्यू कॉल आ गया, इमीडिएट आ गया, सपोज 4 दिन बाद ही आ गया, फिर क्या करना है? तो फिर ये करना है कि आपको मेरे से बात करनी है, मैं आपको कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दूंगा कि ये आप जल्दी जल्दी देख लो, और कुछ स्पेसिफिक मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा, सो दैट यू कैन डू इट ऑन अ फास्टर ट्रैक। बट दैट इज रिक्वायर्ड इफ देर इज एन इमीडिएट इंटरव्यू कॉल दैट कम्स, राइट? अगर नॉर्मली आपका इंटरव्यू आ रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट? बैच बैच को लेके कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताएं पहले, फिर आगे चलते हैं। अनम्यूट भी कर सकते हो, लिखने की मेहनत मत करो। सर, सो हमारे पास अभी जो नेक्स्ट 1 वीक का प्लान है, हाँ ओके, हाँ। तो बेस्ड ऑन द गाइडेंस दैट यू विल बी शेयरिंग टू अस, हमें कब तक वेट करना चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग टू फाइल कैंपस फॉर्म, फोर्थ गिवन फोर्थ दैट 4th? ओके। फोर्थ या। जैन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आज फर्स्ट है। सो सेकंड ओके। थर्ड 2 दिन आप ये करो कि आपके सिमिलर अटेम्प्ट्स के जो फ्रेंड्स हैं उनसे एक बार बात कर लो, जिन्होंने पिछला कैंपस दिया है, थोड़ा उनसे एक आइडिया ले लो, और एक अपने मन में एक ब्रॉड पिक्चर बना लो कि कौन सा सेंटर लेना सही है, ठीक है? और फोर्थ ओके। को मैं आपको फाइनली बता दूंगा कि व्हाट इज माय थॉट प्रोसेस, ओके, फाइन। ठीक है? और उसके अलावा भी जो उसमें छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, अटेम्प्ट्स कैसे लिखना है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, वो भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है? ओके। तो फिफ्थ और सिक्स फिल द फॉर्म, सबमिट कर देना फिर, ठीक है? ओके। ओके। या। हेलो सर। हाँ पूजा बोलिए। सर मैं बोल रही थी, जैसे मैं मेंबरशिप अभी अप्लाई कर रही थी, तो जैसे मैंने हम्म। आपको पूछा कि उसमें जैसे सर मेरा बीकॉम एंड एमकॉम मेंशन नहीं किया हुआ साइट पे, तो वो क्या करना जरूरी है, मतलब करना चाहिए क्या हमें? बीकॉम और एमकॉम? अपडेट, मतलब अपडेट करें क्या एसएसपी पोर्टल पे हम बिफोर मेंबरशिप?
देखो एक चीज समझो आप लोग, अभी जो शॉर्ट लिस्टिंग्स हैं, ठीक है, मैं प्योरली कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात करूंगा, क्योंकि वी वांट मैक्सिमम शॉर्ट लिस्टिंग, ये हमारा पर्पस है, ठीक है। तो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बीकॉम तो अपडेट कर देंगे, एमकॉम अगर एक बार का नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और एसएसपी पोर्टल पे करो या ना करो, कैंपस के फॉर्म में जरूर फिल करो उसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज यू वांट टू हैव शॉर्ट लिस्टिंग, और बहुत सारे पीएसयूज हैं वो शॉर्ट लिस्ट नहीं करते अगर किसी ने ग्रेजुएशन नहीं किया होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और कई लोग बोलते हैं कि सर हमने ग्रेजुएशन तो किया है लेकिन इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म नहीं किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, इंस्टीट्यूट को आप कर दो इन्फॉर्म, कुछ पेनल्टी वेनल्टी लग जाएगी लेकिन कम से कम शॉर्ट लिस्टिंग तो आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ बड़ी कंपनीज, आई थिंक वेदांत ऑल्सो, उनको भी ग्रेजुएशन चाहिए होता है। एम आई क्लियर ऑन दैट? यस सर। प्लीज डू दैट। यस। या एंड डेफिनेटली देखो, इंस्टीट्यूट में हर चीज का वो है, क्या बोलते हैं, जैसे कि लाइक इफ यू आर लेट ऑन द मेंबरशिप फीस पेमेंट, उसका भी कुछ ना कुछ तरीका है। सो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो इंस्टीट्यूट के रजिस्टर में से नाम कट गया था मेंबरशिप, मैंने मेंबरशिप फीस ही नहीं भरी थी 2-3 साल तक, वो पता ही नहीं था, राइट? क्योंकि एक बार जॉब में आप आ जाते हो सब भूल जाते हो फिर। तो वापस जो भी पेनल्टी है वो पेनल्टी दी और फॉर्म रिस्टोर हो गया, समझ रहे हो? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर अभी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं? मेंबरशिप के लिए देखो, उसमें फॉर्म में आपको बोलेंगे कि एक डेट है जो आप डेट डाल सकते हो आगे की, ओके। ठीक है। तो तो मेंबरशिप जरूरी नहीं है कि अभी अप्लाई करो, यू इफ यू वांट यू कैन अप्लाई इट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, ठीक है। और जल्दी अप्लाई ओके। कर दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर्म के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मेंबरशिप नंबर हो आपके पास। ओके। तो सर इंटरव्यूज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस भी अगर अप्लाई कर रहे कहीं हैं भी तो? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। राइट, सो प्लान क्लियर है आप लोगों को? बैच से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। किसी ने क्वेश्चन लिखा था कि लाइक विच वन इज बेटर, अटेंड ऑनलाइन और ऑफलाइन? देखो ये आपके कंफर्ट के ऊपर है, विच वन इज you can grab fast, right? Because the same, exactly same questions will be discussed in the morning and evening batch, right? Whether it is face to face or online. The only thing is that if you want, अगर आप चाहते हो तो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी सब तरह से दे रखी है। आप ऑनलाइन अटेंड करते करते आपको ऑफलाइन में आना है तो आप वो कर सकते हो, और ऑफलाइन अटेंड करते करते ऑनलाइन में जाना है तो आप दोनों चीजें कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी कारण से आप दोनों ही क्लासेस मिस कर गए, कुछ रीजन के कारण, तो फिर आपके पास रिकॉर्डिंग, डेली की रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगी, राइट? सो यू विल गेट अ एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन पे एवरी डेज लेक्चर विल बी अपलोडेड नेक्स्ट डे, राइट? सो बैच से रिलेटेड और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो बताएं, अदरवाइज आगे चलते हैं हम लोग। ऑल राइट, चलिए। सो अब हम आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कैंपस प्रिपरेशंस, ठीक है। व्हाट विल बी द टाइमिंग मींस फॉर व्हाट? ओके, थोड़ा क्लियर नहीं है क्वेश्चन आपका। ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली यही टाइमिंग है, 8 p.m, 8 p.m to 9:30 p.m, और लास्ट थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, सो 15-20 मिनट्स, सो इट वुड बी 8 p.m टू ऑलमोस्ट 10 p.m। लेकिन 9:30 तक हम लोग ट्राई करेंगे क्लोज करते हैं, ओवरफ्लो हो जाता है नहीं तो बहुत ज्यादा अगर टेक्निकल डिस्कशन होगा तो। ऑल राइट, चलें। तो सीए फाइनल वर्सेस कैंपस, ठीक है। क्या क्या बड़ी दिक्कतें आती है, तो पहले तो एक बात समझो, आप लोग अभी तक लिख रहे थे आप आंसर्स,
written exams versus speaking this thing, right? There is a very very big difference. Okay, so you need to first of all change your habits. First habit is now start thinking from speaking angle. Whatever is coming in front of you, do not try to write it. Now think from that angle that you have to speak, right? So एक तो habit change करना है आपको. So speaking is very very important. Second, this campus is a one-time opportunity, as you know, right? There will not be any multiple this thing. So this is the final one-time and final opportunity. So you have to make most out of it, right? What you have to study, very very specific thing. देखो, CA final का syllabus was very difficult syllabus. I would say this is comparatively an easier syllabus. इसका जो syllabus है उसी का एक सबसेट है और बहुत easy सबसेट है. Are you getting my point? तो बस ये कि यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ. 3 दिन में हमको इंडेक्स खत्म करने हैं, 3 सेशंस ओनली, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी फास्ट, वेरी स्मार्ट एंड वेरी वेरी स्पेसिफिक. ठीक है, कहाँ पे डीप में जाना है, कहाँ पर सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, बस ये बात आप समझ गए तो फिर आपके लिए चीजें बहुत ईजी हो जाएगी. अगर यहाँ पे भी आप डीप में गए, सीए फाइनल में देखो एक चीज होती है, वो चाहते हैं कि आप डीप स्टडी करो, लेकिन कैंपस में डीप स्टडी की जरूरत नहीं है. तो ये एक डिफरेंस है जो ध्यान रखना है हमें. प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, राइट? कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया, इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ऑडिट के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं चाहिए यहाँ पे, लाइक डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, वो सब नहीं चाहिए, लेकिन गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब चाहिए होता है. ठीक है, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी यूजफुल हियर. सो जिन्होंने भी आर्टिकलशिप में मजे करे हैं, राइट, उन लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, वो जिन्होंने काम किया था उनको तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, राइट? और जीडी एकमात्र ऐसा राउंड है जो आपको अलग से खास तौर पे थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी रहेगी फॉर ग्रुप डिस्कशन. व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? देखो, कोई भी प्रोफाइल हो, बैंक्स, कॉर्पोरेट, फर्म्स या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लगभग लगभग एक ही प्रोसेस है. सबसे पहले रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा. Round 1 will be assessment test, right? Assessment test, it could be aptitude test, it could be subject related test, it could be some kind of online test. कोई भी टेस्ट हो सकता है, जरूरी नहीं हर कंपनी करवाती हो. कुछ कंपनीज कराती हैं. ठीक है, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको भी उसके. फिर ग्रुप डिस्कशंस, टेक्निकल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू और पार्टनर राउंड. पार्टनर राउंड यानी कि फाइनल राउंड या एचओडी राउंड. ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस. कुछ कंपनीज की अगर हम बात करें तो क्या उनकी प्रोसेस रही है अभी तक. ठीक है, सो ईवाई की अगर मैं बात करता हूँ तो ईवाई में स्टैट्यूटरी ऑडिट में टेक्निकल राउंड होता है, वो सीनियर मैनेजर लेते हैं. ठीक है, वो बहुत डिटेल में एक एक बात पूछते हैं, आपने आर्टिकलशिप में क्या करा है, केस बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, मतलब टेक्निकली दे चेक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. सो दैट इज द फर्स्ट राउंड दैट दे कंडक्ट. आफ्टर दैट देयर विल बी अनदर राउंड बाय पार्टनर, राइट? पार्टनर और केस बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं आपको, थोड़ा बिहेवियरल बेस्ड डिस्कशन भी ज्यादा होता है वहां पे, और एक एचआर राउंड होता है. ठीक है, एचआर राउंड पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स. विप्रो की अगर हम बात करते हैं तो विप्रो में एक असेसमेंट टेस्ट होता है, उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं. मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको एप्टीट्यूड के, तो वो आप देखिएगा. उसके बाद उसमें प्योरली इंटरव्यूज हैं. ठीक है, लेकिन विप्रो भी 2 तरह की कंपनी आ सकती है. एक होती है विप्रो आईटी, जो जनरली हम सुनते हैं, और एक होता है विप्रो जीएफएल, राइट? जीएफएल इज बेसिकली देयर एफएमसीजी कंपनी. तो उन्होंने ग्रुप डिस्कशन करवाया. ठीक है, सो ग्रुप डिस्कशन की पॉसिबिलिटी का ट्रेंड ये है कि एक टाइम था जब बहुत कंपनीज ग्रुप डिस्कशन कराती थी, ऑलमोस्ट मान के चलो 70 to 80% कंपनीज. जब ऑनलाइन कैंपस हुआ तो ऑनलाइन में वो कम हुए थोड़े ग्रुप डिस्कशंस, और फिर से अभी जब फिजिकल इंटरव्यू स्टार्ट हुए फिर थोड़े बढ़ गए. तो आधी कंपनीज या 30% 40% कंपनीज में आप देखोगे कि अभी भी ग्रुप डिस्कशंस होते हैं. वेदांता जैसे कि ग्रुप डिस्कशन कराता है. एलएनटी की बात करें तो एलएनटी में एक असेसमेंट टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यूज होते हैं. तो ऐसे करके आप मान के चलो कि इट्स अ मिक्स. सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर असेसमेंट टेस्ट, जीडीज एंड इंटरव्यूज, एवरीथिंग. ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरव्यूज की. इंटरव्यूज में देयर आर 5 पॉइंट्स, राइट?
फर्स्ट इज रेज्यूमे। रेज्यूमे तो आप प्रिपेयर करोगे ही, अच्छे से आप कर चुके हो, राइट? तो ये अभी तो आपने लिखा है, अब आपको रेज्यूमे में जो पॉइंट्स लिखे हैं आपने, राइट, उनको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है? तो वो इंटरव्यू में पता चलेगा। इंट्रोडक्शन में आपको बता दूंगा कैसे इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। आर्टिकलशिप, अगेन इस क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे कि आर्टिकलशिप के क्वेश्चंस आते हैं। कल ही आपको कॉल आता है, राइट? आई एम कॉलिंग फ्रॉम डेलॉइट, हैव यू डन आर्टिकलशिप इन स्टैट्यूटरी ऑडिट? ठीक है, ध्रुव मिल, आप बताओ, ठीक है? एक दो स्टूडेंट्स थोड़े से पार्टिसिपेट Yes, sir. करते रहो, Yes, राइट? sir. तो So if I'm getting a call from Deloitte and if हम्म they are asking me that whether I have done statutory audit, so my response would be like, yes, I have assisted in statutory audit with my seniors for multiple MNCs and listed companies. Apart from statutory audit, I have also conducted limited review for those companies, uh, and also assisted for like audit audit related adjustments and queries related work. All right, very good. So basically, I don't know whether you have conducted audit or not, right? I am just assuming कि आपने audit करा है, लेकिन अगर किसी ने audit नहीं करा है, ठीक है? And if they are calling and you are saying no, I have not done statutory audit, I have got major experience in taxation only, phone immediately cut हो जाएगा, Okay. बात ही नहीं होगी उसके आगे, राइट? एक Hmm. स्टूडेंट ने यही करा था, उन्होंने बोला था कि मैंने टैक्स में ज्यादा काम किया है, लेकिन फिर भी मेरी इंटरव्यू देने की इच्छा है, राइट? तो उन्होंने उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला है कि आप हमारा टाइम भी खराब कर रहे हो और आपका भी टाइम खराब कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहने की बात ये है कि जो फर्स्ट स्क्रीनिंग का अगर आपको कॉल आता है तो टेल देम दैट आई हैव डन स्टैट्यूटरी ऑडिट। उसके बाद आगे की बात आगे देखना, ठीक है? सीधे मना कर दोगे तो गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है? वो स्क्रीनिंग राउंड होता है, तो स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू, तो टेक्निकल लोग लेंगे, उस टाइम का कैसे मैनेज करना दैट विल बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है? और इन सब चीजों के लिए रेडी रहो अब आप, क्योंकि जैसे ही आप नौकरी हो इन सब पे अपलोड करोगे तो ऑफ कैंपस कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? सो आर्टिकलशिप का और भी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। अभी जैसे रेज्यूमे रिव्यू के टाइम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेश्चन थे कि आर्टिकलशिप ठीक से नहीं हुई, अब क्या करना है, ठीक है? या फिर एक एरिया में हुई है तो क्या करना है, तो वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके बाद टेक्निकल राउंड होता है, टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आज हम लोग लेंगे यहाँ पे, और फिर एचआर राउंड रहता है, राइट? तो ये 5 चीजें करनी है आपको अपने इंटरव्यूज के लिए। आर्टिकलशिप का मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया है, ठीक है? ये वही है कि लाइक इफ यू हैव डन इन अ डिफरेंट फील्ड, ठीक है? सो यहाँ तक में अगर किसी का कोई भी डाउट हो, बहुत सारी बातें कर ली अभी तक, ठीक है? तो कुछ भी सवाल हो तो पहले बता दो, फिर मैं आ जाता हूँ टेक्निकल, क्योंकि फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर हम लोग केवल टेक्निकल टेक्निकल डिस्कशन करेंगे। तो कैंपस से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, और कोई करियर से रिलेटेड, तीनों सीज से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो बता दो, कैंपस, क्लास, करियर। सर, हेलो। हेलो। हाँ, सब भी बोलिए। सर, जो ग्रुप डिस्कस में टॉपिक्स जो होते हैं वो पहले से स्पेसिफाई होते हैं या? नहीं नहीं, ऑन द स्पॉट मिलता है, और दे गिव ऑन यू द स्पॉट नॉर्मली होते हैं? ओके। 2 to 5 minutes टू थिंक। ओके। ऑल राइट, चलें। सो अब हम आते हैं, केबीसी खेलते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है? ऑल राइट, सो एवरी क्वेश्चन दैट, हाँ ध्रुमल, यू हैव अ क्वेश्चन? No, sir. Okay, okay. So every question that you will be answering here, right? Definitely, as I already mentioned, that there will be prizes. So try to give the best possible answer, okay? Or speak up rather than writing it in the chat box. That is the most important. The question is that if there is a health club and it's a membership of 12,000, uh, yearly membership of 12,000, for 1 month they are given a free promotion to all residents, right? उन्होंने 1 महीने का फ्री कर दिया. So how much revenue for that particular month should be recognized
as per Ind AS 115. क्वेश्चन सर क्लियर है आपको? yes, हम्म। सर मैं आंसर ट्राई करूँ? 9 हाँ सुरभि बोलिए। 923 सर। हेलो। हाँ सुरभि बोलिए। हाँ सर, आई थिंक 1 मंथ के लिए कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे उस टाइम पे, क्योंकि अभी तक हमारे पास पेमेंट टर्म्स जो है वो आइडेंटिफाई नहीं है हमको। क्योंकि अगर आगे जा वन 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 हाँ, क्योंकि पेमेंट टर्म्स उस पर्टिकुलर मंथ के लिए आइडेंटिफाई नहीं है, वो फ्री में हमने प्रोवाइड किया। क्योंकि पेमेंट टर्म्स डिफाइंड नहीं है, दैट्स व्हाई। हाँ yes, ओके, so you सर will not recognize any revenue, that's what you're saying. yes. All right, okay, ठीक है। Any other answer? Anyone? Sir, we सर will प्लीज सर। recognize for the 13 months revenue. You will recognize it for 13 months revenue, means first month how much you will recognize? Sir, 12,000 divided by 30 means yeah, yeah. 12,000 divided by 13, all right, okay, okay, good. Sir, I think there has to be a contract for recognizing revenue, and in this case, there is no contract per se between the club and the residents. So, without a contract, revenue recognition cannot be triggered. All right, okay, great. Okay, good job, three of you, good answers. देखो, ये पर्टिकुलर कौन सी स्टेप से आइडेंटिफाई हो रहा है? एनीवन हु कैन टेल मी? स्टेप 1, स्टेप 1, आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत सारी कंपनीज ये क्वेश्चन पूछती हैं अलग अलग तरह से, ठीक है? सो बिकॉज देयर इज नो सर्टेनिटी and there is no penalty as such, if I use the membership for 1 month, मैं गया वहां पर, ठीक है, और मैंने वहां पे पूरा 1 महीना उसको अच्छे से यूज करा, क्लब को, ठीक है, और 1 महीने के बाद मैंने बोला अब मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है, तो क्या हुआ? क्लब आपको कुछ भी चार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं बोला कि इट इज फ्री। सो व्हेन इट इज फ्री, द फर्स्ट कंडीशन दैट इज आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, उसकी 5 कंडीशन है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है कि द पेमेंट टर्म्स हैज टू बी वेरी क्लियर, राइट? एंड यहाँ पर पेमेंट टर्म्स क्लियर नहीं है। द वन पार्टी कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट फेसिंग एनी काइंड ऑफ रिपरकशंस, राइट? सो इसलिए द आंसर इज दैट देयर विल नॉट बी एनी रेवेन्यू दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है? सो गुड जॉब, आई गॉट द आंसर्स, ठीक है? सो एक बार सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद जिन्होंने सही आंसर्स दिए हैं, राइट, विल बी पॉइंटिंग फाइनली मेंशनिंग दैट, ठीक है? ऑलराइट, सो क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Goods are dispatched from factory on 31st March and will be reached to buyer's place on 5th of April. In which year revenue should be recognized? कोशिश करें नए लोग आंसर दें, नॉट द सेम सेट ऑफ स्टूडेंट। Goods are dispatched from factory on 31st March, right? सर हाँ द्रुमिल बताएं। we will recognize revenue in the next year because the goods are received in next year. That is when the buyer has received the control of the goods. So All right, basically, the propriety of the goods is transferred in the next year. all right, next year इसको recognize करना चाहिए, These ठीक है? goods, yeah, because the performance obligation is fulfilled next year. That case. All right, very good. Any other answer? Sir, ideally, if let's say the performance obligation of the seller is to send the goods to the buyer's place, then it would get completed the next year on 5th April. But if the performance obligation is at the factory's door and the buyer will have to arrange the transportation, then the performance obligation gets completed on 31st March and then revenue recognized in the same year. Otherwise, the next year. So it depends on what is the agreement between the buyer and the seller regarding the freight or transportation of goods from the factory to the buyer's place. All right, depends. Okay, good. Sir, revenue is to be recognized, I think, when the ownership is transferred. When the ownership is transferred, all right, okay. So when? This year or next year?
Sir, maybe this year. Sir, it is अगर as per ownership accounting standard that revenue अगर should be recognized when ownership is transferred in the next year. But as per Ind AS, it is not about ownership, it is all about transferring control of the goods. ऑल राइट, ओके गुड। ओके, सो इसमें जब आप देखोगे तो इंटरव्यूअर आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे सिंपल एक आंसर ले रहा हूँ, राइट। लेकिन मैं अगर चाहूँ तो मैं आपको सर बहुत सारे सिनेरियोज देख के कंफ्यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि लाइक आप बोल रहे हो कि ऑनरशिप कब ट्रांसफर, जब ऑनरशिप ट्रांसफर होती है तो मैं आपसे फिर ये पूछ सकता हूँ कि ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, ठीक है। सो दैट वे, ओके, बट गुड ट्राई। यस, लाइक फाइनल आंसर हो लेते हैं। यस, लविशा बताएं। Sir, if we consider build to ship to model, then in that case we will, matlab, in this year we will record the transaction. Revenue recognition will be done in this year. All As right, so according basically to you are saying as per GST, right? no, Okay. sir, as per Ind AS 115, in that we have that build to ship to model. So, नहीं नहीं नहीं, वो तो इसी में है, जीएसटी में, बिल टू शिप टू मॉडल। ओके चलो, लेकिन यू हैव पीपल हैव ट्राइड, राइट, दैट्स वेरी गुड। आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे रिफाइनमेंट तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। अब इसका जो फाइनल आंसर है वो आंसर एक बार देख लो। इसका जो आंसर है वो बेसिकली व्हाट यश हैज गिवन, वेरी गुड आंसर, दैट बिकॉज ये डिफाइंड नहीं है कि फैक्ट्री गेट से निकलने के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी। फैक्ट्री गेट से निकलने के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है, राइट, या फिर ये सेलर की है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस कंडीशन के ऊपर बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है अगर, राइट, जिसमें कि इंश्योरेंस और फ्रेट दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर सेलर की रहती है, तो उस केस में जब ये बायर की फैक्ट्री पे पहुंचेगा तब जाके उसको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को फुलफिल माना जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इसका आप एक सिंगल आंसर नहीं दे पाओगे। और जो द्रुमिल आपने आंसर दिया, इट्स अ गुड ट्राई कि ऑनरशिप बोली हुई है इंडेक्स 115 में, लेकिन सवाल ये है कि ऑनरशिप का ट्रांसफर क्लियर नहीं है यहाँ पे कि कब हो रहा है, ठीक है। सो इट विल डिपेंड ऑन दैट। तो एफओबी कॉन्ट्रैक्ट है या सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। Okay, okay, okay. सो देखो, ये दोनों क्वेश्चन से दो तीन बातें पहले निकाल लेते हैं और आगे चलते हैं कि देखो, पॉइंट सिंपल ये है कि अब वी हैव टू अप्लाई वट एवर वी हैव स्टडीड, ठीक है। नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑब्वियसली कि आप हर चीज थ्योरी पढ़ी है अब उसको हर चीज को कैसे करोगे अप्लाई। तो ये बात समझो आपकी हर चीज को नहीं करना है आपको। जिस इंडेक्स 115 जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले उसको तैयार, एप्लीकेशन बेस्ड। जरूरी नहीं है हम हर चीज को प्रैक्टिकल वे में लें, लेकिन 115 को प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसके दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे। तो क्लास में भी एक फुल डे डिस्कशन यही होता है, फुल डे इन द सेंस कि लाइक फुल सेशन जो डिस्कशन होता है ऑलमोस्ट 3 आवर्स का, वो इस इंडेक्स के क्वेश्चंस पे रहेगा, इंडेक्स 115 के, ठीक है। और उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता है कि इंटरव्यू में और कुछ पूछेंगे, क्योंकि मेन मेन जो जो इसकी टेक्निकलिटीज हैं वो कवर हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का एक क्वेश्चन है, लेकिन 115 को ऑलरेडी हम दो तीन क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो इसको अभी पार्क कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? 115 सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देके स्टडी करना है और प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करना है, ठीक है। भले वो स्टेप 1 हो, स्टेप 2 हो, 3 हो, 4 हो, वट एवर, ठीक है। काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार उसका, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है वो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। वैसे मैं ग्रुप पर और भी मैं इसके क्वेश्चंस मैसेज करूंगा आप लोगों को, लेकिन जब 115 का डिस्कशन हो तो बी वेरी वेरी एक्टिव ऑन दैट डे। ऑल राइट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक और इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन, ये डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड ओसीआई, ठीक है। जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हो तो प्रेफरेंस डिविडेंड और ओसीआई का क्या ट्रीटमेंट करते हो, राइट? हु वुड लाइक टू आंसर दैट? नए नए स्टूडेंट्स देंगे तो और मजा आएगा। यस,
आकांक्षा? हाँ आप बोले। सर ए बी कौन है? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स ऐड हो जाएगा, और है ना ओसीआई का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो है ना पीएनएल में ही नहीं आता है। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या करोगे? हेलो? जी सर। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड? सर मैं ना प्रेफरेंस डिविडेंड को ऐसे ही ऐड कर देंगे, और कभी उसमें डीडीटी रहता है तो वो ऐड माइनस किस में कर देते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से मैं आप प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड पीएटी। करोगे? ओके। जी सर। और है ऑलराइट। ना ओसीआई का कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। ओसीआई को ट्रीटमेंट नहीं होगा। ओके ओके ऑलराइट। ठीक है, गुड जॉब। आप व्हाट्स योर फुल नेम? आनंद भाले। आनंद। ऑलराइट। देखो ये जो जूम पे भी आप लोगों ने नाम लिखे ना वो पूरे लिख लो, कई बार ऑनलाइन इंटरव्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो राइट योर फुल नेम। ठीक है, कंपनीज के लिए इजी हो जाएगा। ओके, एक आंसर और ले लेते हैं इसका। यस, बेसिकली प्रेफरेंस डिविडेंड न्यूमरेटर में आएगा या नहीं आएगा, मतलब माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। सर सो आई थिंक ये माइनस होता है। सर अर्निंग प्रेफरेंस, अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो उसको ओके, माइनस करना होता है डिविडेंड तो प्रेफरेंस माइनस से। सर करना इन होता है। माय ओपिनियन इन माय हम्म। ओपिनियन प्रेफरेंस डिविडेंड जो न्यूमरेटर है उसमें एड बैक होगा, प्रोवाइडेड न्यूमरेटर के ऊपर वी हैव अर्निंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इक्विटी डिविडेंड, मतलब नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा, तो उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड हो जाएगा, देन वी विल कंप्यूट डाइल्यूटेड ईपीएस। ऑलराइट ऑलराइट। और सर आई ओसीआई थिंक का क्या मोस्ट होगा? लाइकली हाँ बोलिए। यस। नहीं, वो दुर्मिल बोल रहा था, 1 second, let him complete of OCI and then या ही हैज डन इट। dividend would be reduced because EPS is largely holders, and preference shareholder are not equity shareholders, so reduce करके we would get to the earnings available for equity shareholders divided by the number of equity shares, and OCI का treatment कुछ नहीं होगा, and add कभी होता है because add होगा when it is a convertible preference share, that is when we add the earnings and the number of convertible shares for diluted EPS, that is when we ऑलराइट। add, but generally we reduce preference dividend because it is a plain vanilla preference dividend. यस, यू आर Yeah, राइट। and देखो, this would be the basic हाँ, EPS only, तो DPS तक आएंगे, बेसिक में कम हो जाता है ये। यस, बेसिकली हाँ ईपीएस जो है, बेसिकली जब हम बात करते हैं अर्निंग पर शेयर, सो व्हाट शेयर वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इक्विटी शेयर्स, ये याद रखिएगा। यस अर्निंग पर शेयर मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं। सो प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी रिड्यूस्ड, राइट? जो भी अर्निंग्स है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद जो बच रहा है उस अर्निंग की हम लोग बात कर रहे हैं, व्हाट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, सो यस, दिस विल बी रिड्यूस्ड। और ओसीआई तो ऑब्वियसली, ओसीआई तो एक तरह से पीएनएल का पार्ट ही नहीं है, तो आप सभी लोगों ने बोला है। ठीक है, तो उसका कुछ भी नहीं होगा। ओके, गुड जॉब। व्हाट इज आईबीआर इन लीज अकाउंटिंग? लीज अकाउंटिंग में आईबीआर क्या होता है? It is incremental borrowing rate. वेरी गुड, इट इज एन इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। गुड जॉब, वेरी फास्ट। ओके, थोड़ा सा और बताओ, व्हेन इट इज यूज्ड एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? बेसिकली हम जो लीज पेमेंट्स करते हैं उसको अगर हम पीवी करेंगे, जिस बोरोइंग रेट से हम उसको पीवी करते हैं ताकि वो प्रेजेंट वैल्यू में आ जाए, बिकॉज उसी वैल्यू में हम अपने फाइनेंशियल्स में रिकॉर्ड करते हैं आरयू एसेट और रिस्पेक्टिव लीज लाइबिलिटी, सो दैट आईबीआर बिकम्स वेरी रेलिवेंट कि हम कौन सा बोरोइंग रेट ले रहे हैं डिस्काउंटिंग करने के लिए। सो आईआरआर यूज करना चाहिए, आईबीआर यूज करना चाहिए? फर्स्ट प्रेफरेंस आईबीआर होता है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम आईआरआर प्रेफर करते हैं। ऑलराइट। So I think एनीवन एल्स? implicit interest rate preference होती है, और अगर वो अवेलेबल नहीं होती है तो हम IBR यूज करते हैं आईबीआर यूज लीज करते के लिए। लीज। हैं। ऑलराइट, ओके, गुड गुड गुड। ओके, So the first preference is the incremental borrowing rate of the lessor, the one who has given us the lease. And अगर वो available नहीं है तो then I will take my implicit interest rate to discount the lease. But the first preference is the IBR in ऑलराइट, lease सो यू आर accounting. सेइंग आईबीआर इज फर्स्ट एंड देन First, आईआरआर?
If I'm not able to identify the IBR of the person who's given me the lease, then I will take my IRR to discount the lease. All right. Okay. So good job, right? The IBR is basically incremental borrowing rate, और ये लीज अकाउंटिंग में यूज होता है. प्रेफरेंस किसको देते हैं? तो प्रेफरेंस पहला हम IRR को देते हैं, ठीक है, और सेकंड प्रेफरेंस IBR को देते हैं, ठीक है. तो ये एक बार वापस से आप लोग रीचेक करिए, ठीक है. IRR इज फर्स्ट एंड देन IBR इज सेकंड. और IRR किसका यूज होता है, IBR किसका यूज होता है, ये भी ऑब्वियसली आपको देखना रहेगा, ठीक है. सो लीज इज द सेकंड इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ठीक है. जैसे मैंने आपको बोला 115 के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही लीज अकाउंटिंग के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अच्छा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ऑब्वियस है कि हर कंपनी रेवेन्यू तो कमाती है, तो रेवेन्यू अकाउंटिंग हर कंपनी पे एप्लीकेबल है. कंपनी का परफॉर्मेंस जब देखते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि रेवेन्यू कितना बढ़ा, तो रेवेन्यू के ऊपर हर एक का फोकस बहुत ज्यादा होता है. सेम गोज फॉर कॉस्ट ऑल्सो, बिकॉज लीज की कॉस्ट बहुत होती है. आप होटल्स की बात कर लो, एयरलाइंस की बात कर लो, हर कंपनी में लीज इज अ वेरी वेरी बिग कॉस्ट आइटम. तो इसलिए लीज की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है, राइट. तो लीज अकाउंटिंग के क्वेश्चंस भी हमको देखने अच्छे से, ठीक है. गुड गुड आंसर्स. यस. सो वी हैव गॉट ऑलमोस्ट आंसर्स फ्रॉम 10 डिफरेंट पीपल. दैट्स वेरी गुड. मतलब ये एक अच्छी बात है कि आप लोग बोल रहे हो, राइट. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. ये आ जाते हैं, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है. अभी तो अकाउंटिंग के बाद, इंडेक्स के बाद हम लोग आ गए ऑडिट के ऊपर, ठीक है. सो जो ऑडिट के चैंपियंस हैं, पहले तो बताओ ऑडिट के चैंपियंस कौन कौन है यहाँ पे. लाइक हाउ 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 मेनी ऑफ यू स्कोर्ड मोर देन 60 इन ऑडिट? हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर्ड मोर? 76, 71. माय गॉड, दो लोग पास हो सकते हैं इतने नंबर्स में. ओके, मोर देन 70 पूछना था मुझे. आई आस्क्ड मोर देन 60. ओके, 40 वाले कौन है? 40s, यस, 40s वाले बताओ. 58, 40, 40, 40 कोई नहीं है क्या? 40, यस. मोहित, लविशा, नाइस. आंचल, आकांक्ष, बहुत अच्छी बात है. 40. देखो, 40 वालों के ऊपर तो भगवान का हाथ है, राइट. तो आप लोग की तो शॉर्ट लिस्टिंग होना तय है 100%. ओके, फैंटास्टिक. ऑल राइट. आई ऑल्सो स्कोर्ड 40 इन ऑडिट, आई रिमेम्बर. और अजीब सा सब्जेक्ट है, यस. आई वॉज एक्सपेक्टिंग 80 प्लस, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 2.5 आवर में पूरा पेपर कर लिया था. उसके बाद चेकिंग करी थी, उसका ब्यूटिफिकेशन करा था. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 80 प्लस तो आने चाहिए, ठीक है. और आई स्कोर्ड एग्जैक्टली 40 मार्क्स, ठीक है. सो बहुत ही डिफरेंट टाइप का ही सब्जेक्ट है, ठीक है. आई डोंट नो व्हाट टू से. लेकिन अच्छी बात है कि आप लोग के 70 प्लस आए, बहुत अनबिलीवेबल टाइप है, ठीक है. एनीवेज, आप लोगों में से जो भी इसको आंसर करना चाहते हैं, BRS इज नॉट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट ओपिनियन should be given in this case? The disclaimer of opinion should be provided. Sorry, वापस बोलिए प्रियांशी. Disclaimer opinion should be provided because we are not able to obtain sufficient appropriate audit dividend. Disclaimer. सर आई थिंक इसके बेसिस पे हम ओपिनियन अपना अभी नहीं देंगे. हम लोग ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. ओके, ऑलराइट. ऑल्टरनेट मतलब आप ओपिनियन कुछ भी नहीं दोगे? देंगे सर. ऑल्टरनेटिव हम लोग प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, फिर हम लोग उससे कुछ पता लगाएंगे, देन अपना वो देंगे. तुरंत हम नहीं दे सकते ऐसे BRS के बेसिस पे. ओके, ठीक है. और बताएं आंसर्स. Sir, ideally, let's say if BRS doesn't provide a sufficient and appropriate audit evidence, then we would go to other procedures. And even after applying them, we do not get sufficient and appropriate audit evidence, then
if in auditor's opinion the matter is material but not pervasive, we can give a qualified opinion. And if it is material and pervasive, Then there's no option but to give adverse opinion. all Because right. there is then a disclaimer, because there is no evidence and matter is material and pervasive. So without evidence, there is no opinion because the matter is material and pervasive. ऑल राइट ओके यश गुड जॉब यस आपने बिल्कुल प्रूव कर दिया कि आप 76 मार्क्स लेके आए हो बहुत अच्छा आंसर दिया आपने बेसिकली देखो कोई भी क्वेश्चन है आपके सामने ऑडिट ओपिनियन से रिलेटेड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि डेफिनेशन पे जाना है आपको बेसिक डेफिनेशन नहीं तो आप बहुत गलत ट्रैक पे निकल जाओगे और ऑडिट और इंटरव्यूअर तो ढूंढते ही है ऐसा पॉइंट कि जहां पर कैंडिडेट ने कुछ बोला वो एक पॉइंट पकड़ के फिर वो उनको और कंफ्यूज करना चालू कर देते हैं तो याद रखिएगा ऑडिट ओपिनियन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सो वेन एवर दिस कम्स राइट गो विद द बेसिक डेफिनेशन सेज दैट whether material the audit point is material as well as pervasive or it is material and not pervasive ठीक है तो बेसिकली इसी पॉइंट के ऊपर आपको आंसर देना सीधा आंसर मत दो कि मैं क्वालिफाई कर देंगे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर पे अप्लाई करोगे तो उसके बाद क्या करोगे ये भी बताओ कि ऑल्टरनेट प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे ठीक है सो ऐसे करके एंड ऑफ द डे यू हैव टू go to the basic definition whether it is material and pervasive material and not pervasive or whether you are not getting it is not provided by the management right तो तीनों वो जो बेसिक डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको आंसर करना है ठीक है बट गुड ट्राई फ्रॉम ऑल ऑफ यू ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑडिट ओपिनियन से रिलेटेड लेकिन एंड ऑफ द डे वी हैव टू टॉक ऑन द बेसिक साइड ठीक है सो ये पॉइंट ऐसे ऑडिट को लेके बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे गोइंग कंसर्न को लेकर आ सकता है ईओएम केएम को लेकर आता है देन देयर आर क्वेश्चंस ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ये भी एक फेवरेट टॉपिक होता है काफी लोगों का ठीक है तो इसको हमको आगे ऑडिट के अंदर देखना है और सबसे अच्छी बात ये है कि ऑडिट के केवल और केवल जो मेन क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन है केवल 20 क्वेश्चंस पे आपने ग्रिप बना दी तो 70% आपका इंटरव्यू निकल जाएगा राइट आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल कि आपको बस वो 20 क्वेश्चंस के ऊपर अच्छी ग्रिप बनानी And sir, I have a question. हाँ हाँ बोलिए If suppose we are not interviewing for audit role, then would they ask audit questions? नहीं 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 this is only and only if you are going for a For statutory audit core stat audit role, right? core statutory audit Okay, so sir. Thank you. you're right if you are going for hardcore corporate interview right ये जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो रोल होता है तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रोल में दे विल नॉट बी टचिंग ऑडिट they will be touching Indies, they will be touching maybe taxation little bit, and then finance. Audit is only for audit forms, statutory audit forms. And so when you say finance, as in what kind of, I mean, what category of questions? Because finance is something which is very big. So audit I can understand, I can क्या पढ़ना चाहिए, but Indies understand. But finance में मतलब what do you mean by finance? As in Okay, on okay. a overview level. Question से मैं आपका आंसर देता हूँ, right? I'll give you your answer by this question. So Adani Enterprises shares are going down, right? As a trader, it is better to buy put option or to sell a call option. ठीक है? बताएं. This kind of question you may face. अडानी एंटरप्राइजेस की शेयर नीचे जा रहे हैं ठीक है अभी दो न्यूज आई थी राइट आपने देखा होगा दोनों न्यूज बड़ी नेगेटिव न्यूज थी उनके लिए और उसके बाद शेयर्स का क्या हुआ नीचे जाते जा रहे थे ठीक है सो नीचे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे बाय करेंगे पुट ऑप्शन को या सेल करेंगे कॉल ऑप्शन both we can do. बोथ यू कैन डू ओके गुड व्हाट इज सर बेटर अगर अपन को हाँ बोलिए तानिया सर अगर अपन को लग रहा है कि और डाउन होने वाला है तो बाय पुट ऑप्शन करेंगे क्योंकि इन पुट ऑप्शन वी हैव वांट कि शेयर की प्राइसेस और नीचे जाए सो दैट वी कैन मेक प्रॉफिट और नीचे जाएं सेलिंग पुट ऑप्शन और बाइंग पुट ऑप्शन So buy a बाय पुट ऑप्शन
बाय पुट ऑप्शन, ओके, ऑल राइट, यस सर। ओके, गुड गुड, ठीक है। इसका एक सिंगल लाइन में कौन आंसर दे सकता है? Sir, it largely depends on the risk-taking ability of the investor. If he wants a fixed income, he can sell call option and get the premium. But if he wants to earn as much as he can, he has to buy put option. It's on his risk-taking ability. All right, okay, Either so way, he's going to make money if the shares go down. all right, okay, this is a good answer। और भी इसका आंसर हो सकता है, जो लोग स्टॉक मार्केट थोड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं या ट्रेड करते हैं, वो भी आंसर दे सकते हैं इसका। एनी अदर आंसर, एनीवन वुड लाइक वन लाइनर आंसर? सर बाय पुट ऑप्शन, बिकॉज पुट ऑप्शन अगर हम बाय करते हैं तो उसमें एक जो फिक्स प्राइस होगी, हमारे पास ये राइट होगा कि हम उसको उस प्राइस पे सेल कर सकते हैं, और सामने वाले के पास ऑब्लिगेशन होगा कि उसको उस पे वो परचेस करना ही होगा। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं। Sir, in stock ओके, market terms, they say seller पैसा बनाता है. So basically, sell call option to get the premium and get your fixed money. That is what is. देखो इसका इसका आंसर बेसिकली सिंगल लाइन आंसर ये है कि लाइक इफ देयर इज अ ड्रास्टिक फॉल in put option, sorry, the drastic fall in the share price, 3,000 का अडानी एंटरप्राइज का शेयर है, वो सीधे आपको दिख रहा है कि 2,000 पे आ गया, 1,500 पे आ गया, तो जो ड्रास्टिक फॉल है, तो इस ड्रास्टिक फॉल में आपको किस में फायदा होगा? अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हो, क्योंकि देर आर अनलिमिटेड प्रॉफिट्स इन केस ऑफ दी, इफ यू आर अ बायर एंड इफ यू आर अ राइटर, देर आर लिमिटेड प्रॉफिट, जितनी प्रीमियम है बस उतना ही फायदा है, ठीक है। तो अगर हल्की फुल्की गिरावट है, देर इज अ स्लाइड फॉल, देन यू विल सेल अ पुट ऑप्शन, सॉरी सेल अ कॉल ऑप्शन। और अगर बहुत ड्रास्टिक दिख रहा है आपको कि ये गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे? आप यू विल बाय अ पुट ऑप्शन, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। Okay, but good answer. So you got a broad idea, right? They will touch the basics, क्योंकि पुट कॉल आपने पढ़े हुए हैं, डेरिवेटिव आपने पढ़ा है, तो बस बेसिक को टच कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइक वो बिल्कुल चले जाएंगे कि आप तो ब्लैक शूल्स मॉडल लेके ऑप्शन की वैल्यूएशन निकाल के दो, वो बहुत डिफिकल्ट है, तो वहां तक नहीं जाएंगे, बट बेसिक्स, राइट? और भी बहुत क्वेश्चंस हैं, अगर हम अगर अलग कुछ अलग स्टाइल के क्वेश्चन की बात करें तो, एज पर इंडेस शुड लैंड बी शोन एट कॉस्ट और नॉट? क्या लगता है आपको? इंडेस के हिसाब से लैंड को कॉस्ट पे दिखाना है या नहीं दिखाना है? सर इफ लैंड को अगर हम रेंटल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए यूज कर रहे हैं, या किसी अनडिटरमिन्ड पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें इंडेज 40 लगता है, उसके अकॉर्डिंग तो हम उसको कॉस्ट पे दिखाएंगे। बट अगर लैंड के साथ उस पर बिल्डिंग बनी हुई है और उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए या सेल ऑफ गुड्स या प्रोवाइडिंग सर्विसेज के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम उसको कॉस्ट, इधर कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल पे यूज दिखा सकते हैं एज पर इंडेज 16। ऑलराइट, बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं इंडेस 16 की, राइट? कि ये आपके पास पीपी के फॉर्म में, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के फॉर्म में, तब इसको हमको कॉस्ट पे दिखाना है या फेयर वैल्यूएशन पे दिखाना है, रिवैल्यूएशन मॉडल? ओके, एनी अदर आंसर? Should land be shown at cost or at revaluation? 1 year cost, उसके बाद revaluation, okay? Sir, it's an accounting policy choice for a category of assets. So land being a category, it's an accounting policy choice for a company to show it as at cost or reevaluate in fair intervals based on revaluation from a valuation professional. All right, okay, okay, so देखो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि इट विल बी शोन एट फेयर वैल्यू। एवरी पीपी, हर प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट विल बी शोन एट फेयर वैल्यूएशन। और फेयर वैल्यूएशन के दो मॉडल है, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है? दैट अप्लाइज टू लैंड ऑल्सो। कोई भी किसी की भी बात करें, अगर मशीन की बात करें, लैंड की बात करें, कोई भी फिक्स एसेट की बात करें, तो इट इज हैज टू बी शोन एट फेयर वैल्यूएशन, क्योंकि इंडेस का जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज फेयर वैल्यूएशन। अब फेयर वैल्यू करोगे या तो कॉस्ट पे करो या रिवैल्यूएशन पे करो, ठीक है? तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हम उसको कॉस्ट पे दिखाएं, ठीक है? दैट इज द आंसर इफ यू आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडेस 16, अगर ये प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट है, राइट?
ओके, गुड गुड। इसी तरह से इंडेक्स 2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडेक्स 2 के भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ऑल्दो मैं अभी वो ले नहीं रहा हूँ, बट मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू कि 115 के कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपको। 116 16 2 deferred tax asset liability, that is index 12, right? That is also very important, and audit के कुछ क्वेश्चंस जैसे हमने बात करी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसमें से अभी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, सो इफ एक क्वेश्चन और फाइनेंस का लेते हैं। फाइनेंस के भी क्वेश्चंस काफी आते हैं। लेट्स से इफ द कंपनी इज नॉट पेइंग एनी डिविडेंड फॉर लास्ट many years and it's not having any plans of giving फ्यूचर डिविडेंड ऑल्सो, कोई डिविडेंड ना पहले दिया ना आगे देने वाले हैं, और ना अभी तो दे ही नहीं रहे, ऑब्वियसली बात है। तो क्या उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जीरो है? इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी जीरो फॉर दैट कंपनी विच इज नॉट गिविंग डिविडेंड एट ऑल? यस, अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। यस, एनीवन? For cost of equity is the rate of return expected by the equity investor. So let's say if the company is not giving dividend, so it would have free cash flow. So we would calculate cost of equity based on the free cash Let's flow say available. company is in losses, let's say. Okay, so it will not have a free cash flows then. Okay. In that case क्या होगा? आई थिंक सर जीरो तो नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट नॉर्मली जितने वो देती हुई आई है एवरेज उसका कुछ उस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, भले जीरो उन्होंने नहीं, दिया नहीं है। कुछ भी नहीं दो दिया स्टेप अभी तक उन्होंने, कोई भी कॉस्ट अभी तक नहीं, मतलब कोई भी डिविडेंड नहीं दिया उन्होंने, तो फिर क्या होगा? All right, okay. So just think about it, but obviously the answer, what answer is right, but reasoning you need to correct, right? क्योंकि रीजनिंग इज ज्यादा इंपॉर्टेंट। आंसर एक बार आप गलत दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीजनिंग गलत दी अगर आपने तो दिक्कत है। और अगेन यही इंटरव्यू में यही होगा कि आपसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, आपसे हो सकता है केवल 3 क्वेश्चंस पूछें, और वो तीनों क्वेश्चन को ड्रिल डाउन करते जाएंगे। ओके, ऐसा है तो फिर ऐसा, फिर ऐसा है तो ऐसा, राइट? इसको वो ड्रिलिंग जो कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ जिसमें प्राइमा फेशी आपको लगेगा कि ऐसा होगा, लेकिन उसका रियल आंसर कुछ और निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमको थोड़ा काम करना रहेगा। और देखो, ये सब पर्सपेक्टिव्स कोई अजीब से पर्सपेक्टिव नहीं है, ये सब पर्सपेक्टिव्स वो पर्सपेक्टिव है जो इंडस्ट्री में रोज चल रहा है। मतलब इफ यू विल अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक्स कहाँ से निकल रहे हैं, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कंपनी का प्रॉफिट इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए इतने इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं और कंपनी इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस पूछती है आपसे। ठीक है, okay, so answer to this is obviously the cost of equity is computed based on the expectation of the equity investors, and equity investors never have a zero expectations, they always have expectations. And how you compute the expectation of equity investor, obviously there are various models. One the most common model is CAPM model, capital asset pricing model, which is based on RF plus RM minus RF into beta। तो RF की जब हम बात कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो दैट वे वी हैव टू आंसर। सो फाइनेंस के इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और फाइनेंस में इसी तरह से थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस ऑन रेशियोज, टिपिकल क्वेश्चंस ऑन कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल आई वुड से वी विल बी कवरिंग एटलीस्ट 250 क्वेश्चंस। 250 क्वेश्चंस टेक्निकल क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब थोड़ा हो सकता है उससे ज्यादा ही हो जाए, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन से मिला लें अगर तो, बट इतने आप क्वेश्चंस मान के चलो। ठीक है, तो ये सब रिवीजन हो जाएगा। आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर है क्वेश्चंस, राइट? लेकिन ये होता है कि कुछ चीजें पढ़ने को टाइम हो चुका होता है, कुछ चीजें हम लोगों ने
फर्स्ट ग्रुप पहले क्लियर कर लिया, सेकंड बाद में क्लियर किया, और समथिंग लाइक दैट। तो ये सब चीजें आपको टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको सोचने का टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट मैनेजमेंट की प्रोफाइल आती है, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं थोड़े। ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ दी टेक्निकल क्वेश्चंस, राइट। टेक्निकल इंटरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो बताएं मुझे, नहीं तो हम लोग फिर एचआर राउंड पे आ जाते हैं। Although I would say good answers from your side, right? So first of all, let me appreciate you कि मजा आया डिस्कस करके, because you were giving very good answers. ठीक है। So most of your answers were right. ठीक है। जहाँ जहाँ पे छोटा मोटा करेक्शन था, I did that. So overall it was fantastic. ठीक है। जिन लोगों ने सही आंसर्स दिए हैं, डेफिनेटली दे विल गेट प्राइजेस फॉर दैट। तो वो जो प्राइजेस हैं, राइट, एक बार हम लोग ग्रुप पे उसको मैसेज कर देंगे आपको कि हु ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर। ठीक है। और जिन जिन के 50% भी करेक्ट आंसर होंगे उनको भी कोशिश करेंगे कंसिडर करने की। अब हम आ जाते हैं एचआर राउंड के ऊपर। देखो, एचआर राउंड प्योरली बिहेवियरल बेस्ड राउंड है। ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है? इसमें दिक्कत ये होती है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं, कंपनीज लाइक विप्रो, दे समटाइम्स पुट इक्वल एम्फोसिस ऑन एचआर। जितनी बड़ी कंपनी होगी उसमें उतना टिपिकल एचआर होगा। ठीक है। मतलब विप्रो की चेकलिस्ट में आपको ये भी मिल जाएगा कि हमने कैंडिडेट से हाथ मिलाया, उन्होंने हाथ कैसे मिलाया, इट वॉज अ फर्म हैंडशेक, इट वॉज अ लूज हैंडशेक, ये सब चीजें भी आ जाती। तो एचआर राउंड मतलब फिर पूरी पर्सनैलिटी का एक तरीके से जजमेंट हो जाता है। ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो कई बार तो इजी लगते हैं, कई बार डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे कि लाइक एक्सप्लेन योर प्लान आफ्टर 5, 10 एंड 15 ईयर्स, ये उनका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगले 5 साल, 10 साल और 15 साल में आप कहाँ पर देखते हो अपने आप को, ये बताओ। ठीक है। अब ये बातें हमने कि वैसे तो कभी सोची हो ही नहीं होती है कि अब 5 साल बाद क्या कर रहे हैं, 10 साल बाद क्या कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपको कुछ तो आंसर देना है, और वो आंसर भी ऐसा लगना चाहिए कि यस, थोड़ा सोचा हुआ आंसर है, इन द राइट लैंग्वेज। तो इसकी प्रैक्टिस और इसके स्टैंडर्ड आंसर्स वो लिखने हैं। ठीक है। तो 2 दिन हम लोग एचआर राउंड डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक कंपनी आती है जैसे बीईएल, बीईएल सुना होगा आपने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पीएसयू है, राइट। उसमें उन्होंने पूछा था कि यू आर नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। आप रिसर्च और डेवलपमेंट में तो इन्वॉल्व हो नहीं, तो फिर आप कैसे हेल्प करोगे कंपनी में? ठीक है। आप तो फाइनेंस में रहोगे। तो इनके हमको क्विक आंसर देने हैं, और ऐसे आंसर देने हैं जो रीजनेबल लगे। ठीक है। सो दैट वे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे, जो पीएसयू जनरली हर बार पूछती है। ठीक है। वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन पीएसयू? पहली बात तो ये कि आप में से कितने लोग हैं जो पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो पीएसयू प्रिफर करते हैं, पीएसयू करना चाहिए ज्वाइन, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी? यस? कोई भी नहीं? नो वन वांट्स टू ज्वाइन पीएसयू? यश? एक मिनट sir, open to everything, not there's no ओपन टू PSU एवरीथिंग। criteria ऐसे थे, but PSU private anything can work, not an issue। मतलब ऑलराइट। specifically PSU criteria कुछ नहीं ऐसा। ओके ओके ओके, नाइस नाइस। ठीक है। देखो, पीएसयू, आप प्रीवियस बैच से बात करोगे ना, तो वो एक ही बात बोलेंगे कि देखो यार, पीएसयू पे बहुत सही करती है। ठीक है। तो अट्रैक्शन जो है ना, वो पीएसयू का केवल इस हिसाब से कि इनिशियल पे इज वेरी हाई। ओके। तो उनका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पीएसयू। ठीक है। तो अब हमारा अट्रैक्शन तो क्या है पीएसयू ज्वाइन करने का? पैसा। ठीक है। लेकिन क्या आप इंटरव्यू में बोल पाओगे ये चीज कि वी आर ज्वाइनिंग इट बिकॉज मनी इज गुड? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एचआर में देखने को मिलेंगे, और इसकी भी इक्वल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, खासतौर पे अगर बड़ी कंपनीज में जा रहे हैं हम। लार्ज कंपनीज, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गई, आईओसीएल, बीपीसीएल टाइप की कंपनीज हो गई, वहां पे बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चंस प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल। इसके अलावा रिटर्न टेस्ट की अगर हम बात करें, असेसमेंट टेस्ट की, तो खासतौर पे विप्रो के लिए मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि विप्रो जनरली कम्स अर्ली। ठीक है। एंड दे आस्क ऑल द लॉजिकल रीजनिंग,
मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो अभी, इसके आंसर्स मैं नहीं ले रहा हूँ आपसे ऑन द स्पॉट, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी आपको 5-10 मिनट का टाइम मिलता हो तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो अच्छी बात है, मतलब यू आर ऑन दैट ट्रैक, ठीक है। और एप्टीट्यूड बहुत सारी कंपनीज ने करवाया था पिछली बार। सो ये एक अपने आप में अलग सब्जेक्ट है एप्टीट्यूड, ठीक है। सो इसको जैसे अभी लाइक शुरुआत ही हुई है क्लास की, तो मैं आप लोगों को 2-3 टेस्ट दूंगा, आप फ्री बैठ के वही सॉल्व करते रहो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपको 100% हेल्प करेंगे कैंपस के अंदर, क्योंकि पिछली बार मेरे हिसाब से कम 5 to 7 कंपनीज दे हैव कंडक्टेड एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड टेस्ट, राइट। इसी तरह से और क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये करना है आपको सॉल्व, ठीक है। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट नाउ। द फाइनल राउंड, राइट। कैंपस के अंदर 3 राउंड जो मैंने बताया आपको, असेसमेंट टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज। इंटरव्यूज के बारे में हमने बात कर ली, टेस्ट के बारे में बात कर ली, अब बात कर लेते हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में, ठीक है। जीडी अपने आप में सबसे टिपिकल राउंड है, एज यू नो। 10 मिनट्स 12 मिनट्स का जीडी होता है, 10 से 12 लोग एक साथ बोलते हैं, समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है, राइट, क्योंकि सबको दिख रहा होता है कि ड्रीम कंपनी उनके सामने है। तो एक तरह का फिश मार्केट बन जाता है, ठीक है। सो ये नॉर्मल सिचुएशन है, इसको आपको थोड़ा बेटर ऑफ करना है, इसमें आपको सीखना है कि कैसे हमको जीडी में बोलना है, ठीक है। तो एक तो प्रैक्टिस है इसके अंदर, लेकिन प्रैक्टिस तब करना है जब आपके पास कुछ कंटेंट हो। तो कंटेंट के लिए थोड़ी आपको रीडिंग्स करनी है, ठीक है। तो जीके मैंने जनरली देखा है कि उतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि सारी मेहनत आप लोगों ने स्टडीज में की होती है, जनरल नॉलेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाता है। तो व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ इज आई विल बी शेयरिंग सम डेटा रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, तो वो याद करना है, ठीक है। तो एक फाइनल राउंड और कर लेते हैं, ठीक है। और अब की बार 1 to 1 जरा पूछते हैं तो मजा आएगा, ठीक है। तो बताओ किसका जी के अच्छा है, उन्हीं से पूछता हूँ डायरेक्टली। हु वुड लाइक टू आंसर? यश, ओके ग्रेट। नहीं, यश के अलावा बताओ, यश ने बहुत आंसर दिया आज। ओके, चलो अल्फाबेटिकली चलते हैं। सबसे पहले आते हैं आकांक्षा से, पूछते हैं आकांक्षा। आर यू देयर? Yes, sir. ऑल राइट, इंडिया की जीडीपी कितनी है? Sir, as far as I know, it's when I searched Google, so it was 5.42% somewhere. नो नो, एब्सोल्यूट जीडीपी, एब्सोल्यूट, अब ये तो ग्रोथ है। एब्सोल्यूट जीडीपी कितनी है? आपने गूगल कर लिया इतनी जल्दी? मैंने तो क्वेश्चन दिखाया ही नहीं 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 था। सर, पहले पहले इसके कुछ 5-6 दिन पहले। अच्छा, ओके। सो बताओ, मतलब आपको इंट्यूशन हो गया था कि मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं पता था। ऑल राइट, ओके। एब्सोल्यूट जीडीपी कौन बताएगा? अमन? Sir, around 3.5 to 4 billion. 3.5 to 4 billion? Sorry, trillion dollars. ट्रिलियन Yes, 3 डॉलर, ऑल trillion राइट, we वेरी crossed last year, so approximately 3.5 to 4 trillion. ऑल राइट, वेरी गुड आंसर। ये सब लोग याद रखो, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है इंटरव्यू में, जरूरी नहीं टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे आपसे, पूछ सकते हैं आपसे कि ओके आपका व्यू क्या है इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आप लोगों का आना चाहिए, वो आना चाहिए कि जीडीपी कितनी है इंडिया की, और हम लोग किस रेट से ग्रो कर रहे हैं। और एक बेसिक कंपैरिजन चाइना के साथ होना चाहिए माइंड में कि ओके चाइना की कितनी जीडीपी है, वो किस रेट से ग्रो कर रहा है, ताकि आप बोलोगे तो थोड़ा उनको लगेगा कि यस इन्होंने, इनका जीके स्ट्रांग है, ठीक है। सो जीडी के लिए ये तैयारी करनी है आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। इट इज समवेयर अराउंड 3.9 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। और कौन से नंबर पे हैं हम, कौन से नंबर पे जाना चाहते हैं, चाइना कितना आगे है, यूएस कितना आगे है, ऐसे कुछ फैक्ट्स आई विल बी शेयरिंग विथ यू, राइट। ये सब आपको जीडी में यूज करना है, ऑलराइट, ओके। चलो ग्रेट, एक और क्वेश्चन लेते हैं, कौन बताएंगे? दीपक? यस दीपक, ओके।
हाँ, अनम्यूट करो। यस, अनम्यूट करो अभी। अब आप लोगों को सबको बोलना है, ठीक है? ओके, बट वॉइस नहीं आ रही आपकी। चलो, एनीवेज, मनाश्री, आर यू देयर? मोहित? यस सर। ऑलराइट मोहित, ओके, चलो आपसे पूछूं। इंडिया और वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड? Sir, India's population is 1.4 billion हम्म। and world's population is, I think, it has crossed 8 billion. 8 बिलियन और 8 ट्रिलियन? 8 billion, I think. 8 billion. नॉट 8 ट्रिलियन, राइट? No, sir. ओके ओके ओके, ऑलराइट, यस यू आर राइट। ठीक है ना? सो 1.5 इज 1.4 प्लस इज इंडिया एंड अराउंड 8 बिलियन इज वर्ल्ड। ओके, यू आर राइट। ठीक है, ध्यान रखिए, 140 करोड़, राइट, और एक 800 करोड़। ठीक है, दैट इज व्हाट द पॉपुलेशन इज। ऑल राइट, सुपर। एंड यस, और किन से बात नहीं हुई अभी तक? लगभग लगभग सभी लोगों ने आंसर दिया, गुड जॉब। एक फाइनल क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग इन रूरल एरियाज? रूरल एरिया में कितने परसेंटेज पॉपुलेशन रहती है इंडिया में? इतनी देर में तो आप गूगल कर लेते हो। सर 65 to 70%। 65 to 70%, ऑल राइट, वेरी गुड आंसर। ये तो करीब करीब 65। ये सब फैक्ट्स आपको जीडी में याद करना है। जीडी में अगर आपको क्रैक करना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है स्पीक फैक्चुअल। इफ यू विल स्पीक फैक्ट्स, 80% लोगों के पास फैक्ट्स नहीं होते, तो आपको एक एज मिल जाता है उनके ऊपर। इसकी एक सिंपल ट्रिक है, ठीक है? तो आप कुछ फैक्ट्स याद करो और फिर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो जीडी विल नॉट गिव यू प्रॉब्लम। ठीक है? सो विल बी हैविंग जीडी सेशंस इन दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कैंपस की, आई एम श्योर कि आप लोगों को ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें, कैसे उसमें इंटरव्यूज में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, ठीक है, और कैसे हमको आंसर करना है उन्हें। अभी हम लोगों ने एक मॉक इंटरव्यू नहीं करा। मे बी टुमारो व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू इंट्रोड्यूस अवरसेल्फ, हाउ टू प्रेजेंट आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, तब हम लोग एक सॉर्ट ऑफ मॉक इंटरव्यू कर लेंगे। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि ओके, लाइक दिस इज द केस देन आई हैव टू आंसर लाइक दिस, एंड दिस इज द केस देन समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे करके आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे, थिंग्स विल बी वेरी वेरी स्मूथ एंड इजी फॉर यू। ठीक है? सो कैंपस की प्रोसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताएं प्लीज। एनी क्वेश्चन ऑन कैंपस प्रोसेस? कोई भी आपका डाउट हो? देखो, एक दो बातें थोड़ी जनरल कर लेते हैं। कैंपस में आपको ये तो पता है कि 4 कंपनीज, मैक्सिमम आप 4 कंपनी सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ये बात तो सभी को पता है। अब ये जो 4 कंपनीज में आप जाते हो, अगर पिछले बार का कैंपस का एक्सपीरियंस लोगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि वो 4 कंपनीज में भी हम हमारे इंटरव्यू नहीं हो पाए थे फॉर सम और दी अदर रीजन, क्योंकि ऑब्वियसली पिछली बार कंपटीशन ज्यादा थी, थोड़ा मिसमैनेजमेंट भी हुआ था। ठीक है? तो जिस कंपनी ने शॉर्टलिस्ट करा उसने भी बाद में मना कर दिया कि नहीं ठीक है, अभी हमारे पास तो वैकेंसी फुल हो गई। तो ऐसे के केस सिनेरियो के लिए भी तैयार रहना है। ऐसे सिनेरियो के लिए भी तैयार रहना है कि कई बार फिजिकली जाते हो वहां पे तो कोई कंपनी ओपन कर देती है कैंपस, यानी कि जिन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं करा है वहां पे भी बैठने का मौका मिलता है। ठीक है? तो इस सिनेरियो के लिए भी हमको रेडी रहना है। तो उस सिनेरियो के लिए वी हैव टू कीप लॉट ऑफ रेज्यूमे विद अस। जब आप फिजिकली वहां जाओ तो बहुत सारे रेज्यूमे लेकर। ठीक है? तो पास्ट स्टूडेंट्स को लेकर आऊंगा थोड़ा क्लास के अंदर, और उनके एक्सपीरियंसेस जब शेयर होंगे क्लास में, तो उनसे भी आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेगी। ठीक है ना? तो कहने की बात ये है कि लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस आर देयर एंड इट्स अ मोस्टली एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, राइट? जो पिछला हुआ है वो अगर आप पूरी तरह समझ गए तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, जर्नी इजी हो जाएगी आपकी। ठीक है? आज एज सच तो मुझे नहीं लगता कि आपने कोई चीजें
खास तौर पर नोट करी होगी, क्योंकि नोटिंग के लिए वैसा कुछ नहीं था, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का था। कल से आपको नोटिंग से स्टार्ट करनी है। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, उसमें फिर आई विल बी पुटिंग अप दी मटेरियल, राइट। रेज्यूमे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, लेकिन हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ टू प्रेजेंट योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, इंडेस 115 के नोट्स, इंडेस 116 के नोट्स, ऑडिट के नोट्स, राइट। सो विल बी पुटिंग इट ओवर देयर। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो जो नोट्स हैं उसमें किसी किसी में कुछ क्वेश्चंस हैं, केवल आंसर्स नहीं है, राइट। सो यू हैव टू नोट डाउन द आंसर्स व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग इट इन क्लास। तो डेली बेसिस पे आप असाइनमेंट कंप्लीट करते जाओ, दैट इज व्हाट आई वुड बी एक्सपेक्टिंग। कल के लिए क्या असाइनमेंट है? देखो, आज 1 जनवरी है, राइट। ऑलरेडी आप लोग न्यू ईयर पे क्लास अटेंड कर रहे हो, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं ओवर बर्डन नहीं कर रहा हूँ आपको। केवल और केवल आपको 2 क्वेश्चन सोच के आने। पहला, इफ a company like Wipro is asking you to introduce yourself, right? एक आप को सवाल बोलते हैं सिंपल सा कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और विप्रो में आपका इंटरव्यू है, तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करोगे? तो आपको प्रिपेयर करना है, कल मैं आपको पूछूंगा, आपको आंसर देना है, ठीक है। दैट इज वन थिंग। सेकंड, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आर्टिकलशिप में आपने एक काम मेजर क्या करा है, ठीक है, बस उस मेजर वर्क को आपको माइंड में सोच के आना है, और उसके ऊपर जब मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा आपसे तो उसके आंसर से, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो 2 काम है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फॉर अ कंपनी विप्रो, एंड बेसिकली हाउ यू हैव टू टॉक अबाउट आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। एक कोई भी ऐसा पॉइंट आपको याद रखना है जो मेजर वर्क आपने करा है, उसके ऊपर देयर विल बी क्रॉस क्वेश्चंस, ठीक है। तो इतना सा आप लोग करके आओ, कल से कॉपी साथ में रखिएगा। वीडियोस देखो, वीडियो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंपलसरी है, लेकिन वीडियो अगर ऑन करते हो व्हाइल आंसरिंग, देन इट आई कैन जज योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक है। और बहुत सारे इंटरव्यूज आजकल ऑनलाइन भी होते हैं, मतलब वैसे तो कैंपस ऑफलाइन हो रहा है, लेकिन इंटरव्यूज ऑनलाइन भी हो सकते हैं। तो एक ऑनलाइन हैबिट भी डेवलप करनी है आपको, लाइक हाउ आई एम सिटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत छोटी सी बात आपको बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट थे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ठीक है। केवल और केवल उन्होंने जो उनकी जो पोजीशनिंग थी ऑनलाइन सेटअप की, वो ऐसी थी कि उनका चेहरा ही नहीं दिखता था, राइट। लाइट कुछ अलग तरीके से ही लगा रखी थी उन्होंने कि इट वाज नेवर एवर क्लियर, ठीक है। 3 इंटरव्यू में उनका केवल इस चीज के कारण रिजेक्शन हो गया। तो आप लोग जब मॉक इंटरव्यू दो तो इस बात का ध्यान रखो कि बिल्कुल 100% दो। आई टोल्ड हिम मल्टीपल टाइम्स इन द क्लास ऑल्सो कि वीडियो ठीक करो, आपका वीडियो ठीक करो। मॉक इंटरव्यू में भी बोला वीडियो ठीक करो, वो उन्होंने माना नहीं इस बात को, ठीक है। तो सिंपल सिंपल से छोटी छोटी सी बातें हम लोग रियलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओनली द थर्ड पर्सन हु इज वाचिंग यू कैन टेल यू कि मतलब आप सही तरीके से आप बात कर रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीजों को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए वीडियोस भी ऑन रखेंगे जब कल से हम लोग डिस्कशन करेंगे, और एटलीस्ट व्हाइल यू आर आंसरिंग, राइट, दैट टाइम एटलीस्ट टर्न ऑन, ठीक है। ऑल राइट, सो ग्रेट गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो बताएं। यस, हाँ बोलिए आकांक्षा। Sir, I was asking that from tomorrow the offline batch is going to be started. So is it compulsory to wear formals or नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल आप ठीक है ना, फॉर्मल्स केवल इंटरव्यूज में जाना है आपको, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, okay, sir? ठीक है। वेन्यू जो है फेस टू फेस क्लासेस का, आई विल बी पोस्टिंग इट ऑन द ग्रुप, ठीक है, तो उसमें आप देख लेना। और फिर हम लोग कल सेम टाइम पे मिलेंगे एट 8 PM, ओके। एंड ट्राई टू कम एज प्रिपेयर्ड एज यू कैन। कैंपस फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग 4th को लेंगे, ठीक है। तो तब तक आप थोड़ी बहुत एक बार रन थ्रू कर लो फॉर्म को, सीनियर्स या आपके फ्रेंड से बात कर लो जिन्होंने सिमिलर अटेम्प्ट्स दिए थे उनके, और कौन सा सेंटर लिया था, तो एक बेसिक प्रिपरेशन कर लो। 4th को हम लोग फाइनली सारी क्वेरीज लेके बैठेंगे, और एक एक करके आई विल बी आंसरिंग ईच वन ऑफ देम। ऑल राइट,
Okay, so great, guys. क्वेश्चन और था कि आपने बोला फॉर्म हम बाद में भर ले, जैसे कि पहले आईडी क्रिएट करनी होती है ना, तो सर आईडी वो क्रिएट क्या कर हम लो, लोग वो कर लेना हम लोग आईडी? मतलब रजिस्टर कर लो। हम्म। रजिस्टर करके फॉर्म आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा, उसके बाद वाला जो प्रोसेस है दैट यू और कैन सर डू। एक चीज और था कि आपका जो मैंने देखा लाइव वो जो ऑनलाइन बैच था, जैसे आप बोल रहे 8 PM से है, उसमें 7 PM दिखा रहा है, तो वो वही वाली बैच? हाँ, साइट पे वो अभी अपडेटेड नहीं है, क्योंकि कई बार 7 PM रहता है, अभी 8 PM है, सो विल करेक्ट इट आउट ओवर देयर, ओके सर, ओके। राइट। सो साइट पे इट विल बी, मतलब अभी जो टाइम रहेगा इसका 8 PM ही रहेगा। ओके सर। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। एंड जितने भी विनर्स हैं आज के, राइट, दे विल बी अनाउंस्ड ऑन द ग्रुप, प्लीज हैव अ चेक ऑन दैट। All right, see you tomorrow. Bye bye. Good night. Bye, Once sir. again, Happy New Year.